Good evening, dear students and other viewers. We are here to discuss entrepreneurship related to rural development. We would be today discussing on the topic planning a rural enterprise. I have Dr. S.S. Bist and Dr. Pradeep Kumar with me. We would be interacting on various issues relating to this topic. It won't be just we would not be teaching you, first of all, because the teleconferencing sessions are meant for interaction, and we hope that the students and even other viewers from the other side who are watching us should put us various questions when we are on with our discussions, so that we are able to make them clear with what we are trying to make them understand. And moreover, it would be quite challenging if we could meet your requirements. Coming back to the topic, planning a rural enterprise. We have discussed about understanding entrepreneurship. We have discussed about strategies and success stories regarding rural enterprise. After having an idea about these things, we expect a student, expect a rural youth, expect a youth for that matter, to think about an enterprise in a rural area. Now, if he starts thinking about an enterprise in a rural India, then what he has to do? He has to plan for it. Just thinking about an enterprise is not enough. He has to think systematically, and according to his requirements, he has to plan. The project has to be tailored. He has to assess his resources, his skills, the opportunities, the environment. A lot of things have to be taken into account before you launch an enterprise. We are here to discuss about it. Dr. Bist is quite an experienced person as far as launching various projects are concerned, because in his personal life he has done so. Apart from his academic qualifications, Dr. Pradeep Kumar is also familiar with various business and enterprise, having belonged to a business family. They're aware, they have written units for us courses. They have an idea about our course in totality. So they would be, trying to put forth before you, picking up an enterprise of their choice, and then discuss for you how to think about an enterprise and how to plan for it. Now, when we say that
an enterprise, it need not necessarily be the enterprise which Dr. Bist would put forth or Dr. Pradeep Kumar would put forth. You can think of your enterprise. You can think about a product, a service, a trade, or whatever you feel like, and you tailor your project according to the resources available, the skills available, the opportunities, the environment, etc. So, Dr. Bist, I would request you to start the discussion. I would rather suggest, since it's a rural enterprise, and with your expertise in rural tourism, if you could just take up a topic on rural tourism, not a topic, a case, a project in rural tourism, and try to see how we could plan a rural tourism unit in a rural area, then I think much of our students would be able to get a idea about how to plan a rural enterprise. Please, Dr. Thank you, Dr. Palit. Dear friends and dear students, to start with, when you think of enterprise and that too a rural setup, then there are so many things come in your mind. Like, you are a beginner, you don't have an experience, at the same time you have a lot of will to work, will to go ahead, will to plan. Now in such a situation, you have to really look into your long-term perspective, keeping in mind your ability, your aptitude, your taste, your resources, your financial resources, and your other resources, your family support and various other things into consideration, and then you plan. Now I presume that you have decided that, well, you are going to start an enterprise. Now when we talk of enterprise, it could be at a rural setup or an urban setup. But since it is a topic related to rural setup, then we will confine our discussion to the rural setup, rural enterprise, where we have a lot of rural youth, educated, uneducated, rural manpower working on fields. They can work on your factory, they will work on your enterprise, because it's all seasonal. When there is even for that matter, a rural enterprise need not be initiated or started by a rural youth. Yeah, it's not necessary. Urban youth with the adequate resources and skills can also come into a rural area and start an enterprise, but he has to come to a rural area and use rural resources, both men and material, to start an enterprise. Well, Dr. Palit, it is true that the entrepreneur can be anyone. Yes. He has to be, I would only suggest that if a rural enterprise is set up in a rural setup by a rural youth, it will be a more success story, because for the reason that he understands the social needs, he understands the social problems, he understands the basic problems of a rural setup, and if he understands the entire setup, I think he will be a successful. And if a person comes from a urban setup, a rich man coming for a business activity in a rural setup, he may be a successful, but he has to really struggle a lot. He has to understand the rural mindset, and he may be a failure also. He may not be liked by people. He may not get such support. You know, there are two things. एक चीज होती है कि आपने पैसा लगाया and things start moving. It is not so. Whenever जब हम कोई business activity plan करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि money is not everything. Well, money has its own role to play, but if the people are emotionally involved into it, mentally involved into it, look, this is an enterprise at my village,
at my district, and it is giving prosperity to me, to my people, to people surrounding. There is a development in infrastructure, there is a whole way of life, whole quality of life is being changed, then people will be more motivated. उनके दिमाग में ये कभी बात घर नहीं करनी चाहिए कि ये बाहर का एक आदमी आया है और वो हमारा खून चूस के ले जा रहा है. आमतौर से इस तरीके की भावनाएं हमारे रूरल सेटअप में अगर आ गई किसी रूरल एंटरप्राइज में, तो within no time and within very short span of time the unit will go sick. So ये बहुत बड़ी बात होगी हमारे प्लानर्स के लिए, उस आदमी के लिए, उस व्यक्ति विशेष के लिए जो कि हमारे अपने रूरल सेटअप पर एक एंटरप्राइज प्लान कर रहा है. नाउ जब हम बात करते हैं रूरल एंटरप्राइज प्लान करने की, सो 2-3 चीजें. सबसे पहली बात है कि आप क्या करेंगे, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कैसे करेंगे और क्या करेंगे. अगर आपको फैमिली सपोर्ट है कि ओके गो अहेड, देन सेकंड स्टेप की क्या करूंगा और कैसे करूंगा. इट मींस जिसको हम एकेडमिकली कहेंगे प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन. नाउ यू मस्ट नो व्हाट यू आर प्लानिंग, यू मस्ट नो कि मुझे क्या करना है. नाउ प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए वही बात जो मैंने पहले बताई कि आपकी एबिलिटी, आपका टेस्ट, आपका फाइनेंशियल सपोर्ट, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, आपका हर तरह का जो एक माइंडसेट जिसके लिए आप तैयार हो चुके हैं मेंटली, वो आपके डिसाइड करेगा कि आप क्या प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे. नाउ ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद अब आप जब नेक्स्ट स्टेप होगा कि ये मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, कि आप अकेला कुछ कर नहीं सकते हैं, आपको सपोर्ट लेना है, हर चीज का सपोर्ट लेना है. और इसके लिए सरकार आगे आती है, सरकार पूरी मदद करती है और सरकारी संस्थान मदद करते हैं. तो इसमें सबसे पहला सपोर्ट जो है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, उसको हम कैटेगराइज करते हैं. और उसमें आपने सुना होगा नाम, जो बड़े लार्जर सेटअप पे है, नेशनल सेटअप पे है, जो रूरल और अर्बन दोनों को देखता है, उसको आप कहते हैं स्मॉल इंडस्ट्री सर्विसेज इंस्टीट्यूट, जिसको हम SISI कहते हैं. ये आपको एक ट्रेनिंग देता है, आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल देता है, आपके माइंड को अंडरस्टैंड करता है, आपके गाइडेंस करता है, ताकि आप किसी एक वेरी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को लेकर के आगे बढ़े. एक तो इस तरीके की संस्था है. दूसरी संस्थाएं आती हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, उनको हम कहते हैं EDI, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट. ये EDIs क्या करते हैं, ये EDIs में जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो ADP प्रोग्राम चलाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं. इसके मार्फत ये लोग जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं उनको इनवाइट करते हैं, उनको ट्रेनिंग इंपार्ट करते हैं, उनको आइडियाज देते हैं, उनको मेंटली तैयार करते हैं कि वो किसी भी एरिया में एक अपना एंटरप्राइज स्टार्ट कर सके. ये होते हैं EDIs कहते हैं. तीसरा जो अब जब हम गांव की तरफ जाएंगे दूर, तो वहां पे आते हैं DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स बोलते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर के रिसोर्सेज के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, वहां के लोगों के माइंडसेट के हिसाब से, वहां के यूथ के एजुकेशन के हिसाब से, वहां पे जो सरकारी तौर पे उस इंटरप्राइज को चलाने के लिए जो सुविधाएं सरकार प्रदान कर सकती हैं, उसके हिसाब से वो DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स जो होते हैं, यूथ को आपको गाइडेंस करेंगे, आपको ट्रेनिंग इंपार्ट करेंगे, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में बताएंगे और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड है उसके बारे में बताएंगे. ये आता है DCI. इसके अलावा आज के समय में जब बहुत सारी जो संस्थाएं हैं जिनको हम कहते हैं प्राइवेट कंसल्टेंसी एजेंसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे NGOs हैं जो इस तरीके के हमारे यूथ को, स्टूडेंट्स को, जो दोज हैव अ विल टू वर्क, विल टू गो अहेड, उनको सपोर्ट करते हैं. तो ये 4 छोटी बातें हमने बताई. SSIs होती हैं, SISI, देन यू कम टू EDI, then we have a DIC, district industry centers, and then we have NGOs in working in rural setup. जो हमारे NGOs काम करते हैं, सब आपको पता है वो कैसे काम करते हैं वो. और उसके साथ साथ प्राइवेट कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको हर तरह की कंसल्टेंसी देती हैं, आपको आगे बढ़ाने में मदद करती हैं. सबका एक अल्टीमेट तो होता है कि वो भी एक बिजनेस एक्टिविटी है, NGO चलाना या कंसल्टेंसी प्रदान करना भी, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी एक प्राइवेट साइन का सेटअप है. आप इसको भी कर सकते हैं, अगर आपकी इस तरीके की हुनर है, इसके क्वालिफिकेशन है, तो आप इसको भी अंडरटेक कर सकते हैं. डॉक्टर वेस्ट, आई जस्ट इंटरव्यू अ बिट. वेल, अभी डॉक्टर वेस्ट के साथ थोड़ा इट वाज अ काइंड ऑफ नॉट अ डिसएग्रीमेंट, बट वी took different lines in the sense that he was very keen that
the entrepreneur should be from a rural area, which is really good. I mean, if the rural youth can start an enterprise in a rural area, nothing is better than that. But at the same time, we should not also debar youth from an urban area to come to a rural area and start an enterprise. नहीं, हमारा कोई disagreement No, नहीं था. it's not a disagreement. It's just a it's Yeah, a true, view, true. which is because there are many youth who think differently these days. They think more positively. They, instead of going abroad, perhaps there are many urban youths who are in some way a bit idealistic, at the same time realistic. They try to think in much more positive and are eager to take up challenges. Now, we as who want rural development should take place and who think that rural enterprise set up in a rural area adds to rural development or promotes rural development. Now, anyone who is keen about an enterprise in a rural area is most welcome. देखिए, मैं थोड़ा आपको रोक करके ये जरूर, कहना जरूर। चाहूँगा कि जो हम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो हमने कोई लाइन ड्रॉ नहीं की है कि कौन उसको कहाँ चलाए, लेकिन मैं ये तजुर्बे के आधार पे, लोगों के माइंडसेट के आधार पे, व्यवहार के आधार पे ये डेफिनेटली ये कहूँगा कि जो हमारा अर्बन यूथ है, जो एक फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रांग है, ज़्यादा क्वालिफाइड भी है, उसका एक माइंडसेट डेफिनेटली रूरल यूथ से थोड़ा डिफरेंट होता है, बिकॉज हिज लाइफस्टाइल, हिज क्वालिटी ऑफ लाइफ इज लिटिल डिफरेंट. नो, अगर वो भी वहां पे जाके कर सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली हम कहां से हैं, हमारा एक आदमी किसी न किसी गांव से जुड़ा हुआ है, रूरल सेटअप से है. जो आपने कहा कि एक आइडियलिस्टिक आदमी हो और रियलिस्टिक उसकी अप्रोच हो, आइडियलिस्टिक हो, तो डेफिनेटली वो एक बहुत अच्छी बात होगी कि कोई युवक इस तरीके की एडवेंचर शुरू करके अपने गाँव की तरफ जाते हैं और गाँव में अपने उन दोस्तों का, पुराने साथियों का, अपने गाँव का, अपने बुजुर्गों का, अपने इलाके का उत्थान करते हैं. ये तो होना चाहिए, लेकिन कई बार हो पाता है, कई बार नहीं हो पाता है. लेकिन वो जो युवक जो गांव से जुड़ा हुआ है बचपन से और जो पढ़ाई लिखाई पूरी की है और जो अभी भी गांव में रह रहा है, अगर उस तरीके से वो किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर के करता है तो वो लोगों से जुड़ा हुआ है, वो जमीन से जुड़ा हुआ है, तो वो ज्यादा सक्सेस होगा. उसके अंदर एक बैरियर, जो सोशल बैरियर, जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर हमारे बन जाते हैं कि मैंने उससे बात नहीं करनी है बिकॉज मैं तो डायरेक्टर हूं या मैं मालिक हूं, मैं एंटरप्राइज चलाता हूं, मैंने पैसा लगा रखा है. वो चीज मेरे ख्याल से थोड़ा गांव का युवक करेगा तो नहीं आएगी. वो हर एक वर्कर को साथ लेके चलेगा. लेकिन जो शहर का एक युवा है जो कि एक खास लाइफस्टाइल से जीता है, तो एट टाइम्स एक मैंने खुद देखा है, आपने भी देखा होगा, एक साइकोलॉजिकल बैरियर, आर्टिफिशियल बैरियर बन जाता है कि नो, मैं इससे बात नहीं करूंगा, ये तो गंदा है, ये इसका माइंडसेट ऐसा है, मैं इसको बात करूंगा तो ये इस तरीके से होगा, एंटरप्राइज के फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आएगी. ऐसा नहीं होना चाहिए. कई बार नहीं भी होता है. I would like to intervene. Yes. I think issue of rural and urban is not important. Not the issue. Important Yes, yes. is Bilkul. entrepreneurship. Entrepreneurship. Whether he or she belongs to urban area or rural area, person should be motivated and completely targeted towards whatever the product and service he or she want to provide to the village. बिल्कुल सही. And problem may arise even rural people, problem may arise to urban both. Whatever the psychological conditioning and social problem, it may emerge for both people, whether they belongs to rural area or urban area. True. So this is not a issue. I think whoever belongs to any region interested to function in urban area for rural development, in rural area for rural development with the rural resources, that is the core issue
of rural entrepreneurship and starting a rural enterprise in rural area? Well, all are welcome, but yet I still agree with Dr. Best कि जो गांव से हैं उनका दिल वहाँ पे I mean they belong to that place. वो जुड़े हुए हैं. Emotionally they are attached to their people, attached to their resources. So they would be perhaps more keen about development in rural area. नो मैं ये डियर स्टूडेंट्स हम ये जो आप इस बात को आप समझने की कोशिश करिए और ये मान के चलिए कि जो हम एंटरप्राइज शुरू करने वाले हैं चाहे वो रूरल यूथ करे या हमारा अर्बन यूथ करे वो कैसे करेगा. नाउ मैंने जो 4 बातें आपको पहले बताई उनके बाद अब आपके पास एक ऑप्शन आता है. आपकी बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं डिस्कशन को. और मैं ये कहूंगा कि नाउ जब आपने ये डिसाइड कर लिया, आपने संस्था की मदद भी ले ली, यू हैव मेड अप योर माइंड नाउ कि मैंने करना है. नाउ यू हैव अ सर्टेन ऑप्शंस. ऑप्शन क्या है आपके पास कि ऑप्शन आमतौर से अगर आप पूरे ब्रॉडर सेटअप में देखें तो कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी सेटअप है, कोई भी एंटरप्राइज है, वो तीन ब्रॉडली कैटेगरी में आते हैं. एक तो मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज जहां कोई प्रोडक्ट बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है. एक या तो मैन्युफैक्चरिंग में जाइए. दूसरा एक आता है ट्रेडिंग, आप मिडिल मैन ट्रेडिंग करिए. और तीसरा आता है कि आप सर्विस सेक्टर एंटरप्राइज बनाइए, सर्विस सेक्टर में चले जाइए और उसमें आप अपना एंटरप्राइज शुरू करिए. नो इन 3 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर ही आप कोई काम कर सकते हैं, चाहे आप रूरल सेटअप में करें या अर्बन सेटअप में करें. कोई भी एंटरप्राइज इन 3 कैटेगरी के ब्रॉडली आता है. और डॉक्टर पालित और प्रदीप साहब, मतलब इफ यू लुक एट इट कि इन 3 कैटेगरीज के अंदर ही हमारे जो यूथ हैं जो कि बिजनेस एक्टिविटीज को प्लान करने का सोच रहे हैं, उनको इसी के अंदर दायरे के अंदर अपनी काबिलियत, अपना फिर बात अल्टीमेटली वही आ जाती है कि अपनी काबिलियत, अपना फाइनेंशियल सपोर्ट, अपना एबिलिटी, अपना एप्टीट्यूड को ध्यान पे किस में आप सक्सेस हो सकते हैं, कौन आप में कुछ एरिया में आपकी एक्सपर्टीज है, उसमें आपको आगे काम करना है. नाउ हम वन बाय वन आपसे डिस्कस करेंगे कि पहली बात आइए मैन्युफैक्चरिंग में. नाउ मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू करने से पहले वो बहुत छोटा सेटअप हो, बहुत बड़ा सेटअप हो, आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है. आपको एक सामान बनाना है, आपको एक प्रोडक्ट बनाना है, आपको हम ये मान के चलते हैं कि गांव के सेटअप में आपको फर्नीचर का काम करना है. आपके पास लकड़ी भी है, आपके पास मिस्त्री लोग भी हैं, आपके पास जगह भी होनी चाहिए, आपके पास बिजली भी होनी चाहिए, आपके पास छोटी मोटी मशीनें होनी चाहिए जिससे वुड कार्विंग की जा सके और एक सुंदर फर्नीचर आइटम तैयार की जा सके. मैं एक उदाहरण के साथ ये आपको बता रहा हूं कि मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज में जाने के लिए आपको चाहिए सबसे पहले लैंड, जमीन, जिस जमीन में आप वो काम करेंगे. फिर उसके ऊपर चाहिए एक बिल्डिंग, एक बड़ा हॉल, एक बिल्डिंग जिसमें कि इसके अंदर बैठ के आप करेंगे. फिर उसके बाद आपके अंदर प्लांट चाहिए, जो मशीनें चाहिए. एंड देन प्लांट मींस जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए प्लांट, एंड देन मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी बोथ टुगेदर. नो अगर ये चीजें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी जिनको हम कहते हैं, ये सब चीजें आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट के लिए पहले तो ये चाहिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाने के लिए. आपको उसके बाद आपका देखना पड़ेगा कि उसमें प्रोडक्शन होगा. प्रोडक्शन एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि आपने लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया. अब क्या होता है, उसके बाद प्रोडक्शन शुरू होता है. तो प्रोडक्शन एक एरिया, इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि आपको देखना है. 2 बात. तीसरी बात, आपको जब प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं तो आप कोई भी चीज ऐसे तो नहीं बना देंगे, तो आपको दिमाग में एक क्वालिटी कंट्रोल जो चीज होती है कि वो आपका जो प्रोडक्ट है, इज इट ए क्वालिटी प्रोडक्ट, तो आपको क्वालिटी कंट्रोल में इंश्योर करना है, क्वालिटी कंट्रोल देखना है. तो एक तीसरा एरिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी कंट्रोल दूसरा एरिया. अब आपने मशीन भी लगा दी, प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी प्रोडक्ट भी बना दिया, तो उसके बाद आगे क्या होगा, आप रखे तो नहीं रहेंगे उसको आप मार्केट में ले जाएंगे. तो फिर मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, आपको अपना नेटवर्क देखना है कि मेरा ये प्रोडक्ट कहां जाएगा, किसके मार्फत जाएगा और कैसे मैं इसको उन लोगों तक पहुंचा सकूं जिनके लिए मैंने बनाया है. तो आपको फिर अपने सेल्स एंड मार्केटिंग देखना है. ये तो 4 कड़ियां हैं बहुत इंपॉर्टेंट. इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है फाइनेंस, कि आपने उस बिल्डिंग सारी चीज में पैसा लगाना है. तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके क्या हैं, क्या आप सेल्फ सस्टेन है,
कि आपको किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से आपको फाइनेंशियल लोन लेना पड़ा है, वो भी मिल गया आपको। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन, आप उसको कैसे चला रहे हैं। सुबह से शाम तक आपकी प्रोडक्शन हुई, आपका क्वालिटी प्रोडक्ट बना, आपका सेल्स मार्केटिंग हो गया, और फिर आपको एडमिनिस्ट्रेटिवली आपका स्मूथ पूरा चल रहा है। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो किसी को, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सिस्टम को स्मूथ चलाने की प्रक्रिया को हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। फ्लॉलेस, बगैर किसी प्रॉब्लम के सुबह से शाम तक काम हो गया, इसका मतलब आप बहुत अच्छे स्मूथ एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और अगर सुबह से शाम तक आपके पास 10 जगहों में 10 प्रॉब्लम आई, इसका मतलब आपके एडमिनिस्ट्रेशन में कोई कमी है, कहीं ना कहीं आपने ध्यान नहीं दिया है। तो ये सब 5-6 बातें जो मैंने बताई, ये एक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज के लिए बहुत अहम चीजें रखती हैं। क्यों डॉक्टर साहब? मैं चाहूंगा इसमें एक ऐड करना पॉइंट। आपने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए। ट्रेडिशनली ऐसा माना भी जाता है, देयर इज 4 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इनोवेशन. So I would just like to elaborate one point, that is the finance point. Whatever the finance is a very important component for starting and planning any enterprise, and it is not easily available everywhere. So we should not think that everybody has available the money. And starting and planning whatever the unit and product want to plan, I think before that they should assess it whether within the limited resource is available, and whatever available, is it possible within that they will able to start producing the product. So these things, financial planning is a very important component, where they will get the resource, whether they have resource. If not, in the meanwhile, in between, if they have the problem of the finance, then I think the whole planning may disrupt. So this is a very देखिए, आज मैं इसको आपकी, आजकल हमारा जो यूथ है इंजीनियरिंग करी हुई है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। नाउ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, उसके अंदर पूरी काबिलियत है कि कुछ प्रोडक्शन की तरीके के काम को कर सकता है। नाउ ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं जो हमारे, और रूरल सेटअप में जिन्होंने रह रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं वहां से, जो किसी व्यक्तिगत कारणों से और बहुत हमारे सामाजिक कारणों से, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मूव नहीं कर पा रहे हैं, और उनके अंदर हुनर है, उनके अंदर ताकत है, वो अपना मन बना चुके हैं, तो वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए बहुत एक अच्छा एरिया होगा जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में आकर के अपना काम शुरू कर सकते हैं। ये तो रही हमारी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज की बात, जो ब्रॉडली हमने आपको कवर किया। नाउ दूसरे तरीके का जो एंटरप्राइज हमारे यूथ शुरू कर सकते हैं वो है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होता है? एक मिडिल मैन का काम होता है। इन व्यापारी तो सभी होते हैं, लेकिन एक प्रोडक्शन किसी ने किया, आपने उसको ट्रेड किया। तो ट्रेडिंग आज की तारीख में एक बहुत बड़ा, और ट्रेडिंग में बहुत लोग जा रहे हैं, क्योंकि जो लोग मार्केटिंग की स्टडीज करते हैं, मार्केटिंग एरिया में जिनकी एक्सपर्टीज है, वो ट्रेडिंग को पसंद करेंगे, वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाएंगे। जो बात की हमने इंजीनियरिंग, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इंजीनियरिंग करके और रूरल सेटअप को करना चाहते, तो वो मार्केटिंग में, वो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में चले गए। नो, मार्केटिंग वाले विद्यार्थी खास करके ट्रेडिंग में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, और उसमें एक्सपर्टीज भी होती है उनकी। ट्रेडिंग को ध्यान में रखने के लिए सबसे पहली बात मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा और ये सुझाव देना चाहूंगा कि आपको प्लान करना है कि व्हाट इज प्लानिंग। कोई भी बिजनेस, चाहे वो मार्केटिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का हो, ट्रेडिंग का हो, खास करके ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा है कि आपने एक प्लान करना है कि आपको प्लानिंग इतने मेटिकुलस और माइक्रो लेवल तक प्लान करना पड़ेगा कि आप कहीं फेल ना हो जाए, राइट? तो इस एक्टिविटीज को बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग के अंदर, जो कि हम वो कर सकते हैं। बहुत प्लान और मेटिकुलस प्लानिंग, माइक्रो लेवल पे आपको प्लान करना है, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, कैसे ट्रेडिंग करूंगा, और जो बिजनेस की निटिगिटीज है उनको आपको जोड़ना पड़ेगा, पहला काम। दूसरा स्टेप ट्रेडिंग के बिजनेस में ये आता है कि आपकी परचेजिंग पावर, आपका फाइनेंशियल सपोर्ट, जो डॉक्टर प्रदीप ने कहा अभी कि आप ट्रेडिंग में जाना चाहते हैं, आपके पास प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, कई लोग हैं जो आपको प्रोडक्ट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ये है कि आप क्या मार्केट करना चाहते हैं। क्या आप छोटे मोटे अचार मुरब्बे मार्केट करना चाहते हैं, या गांव के प्रोडक्ट को शहर में लाना चाहते हैं, या शहर के प्रोडक्ट को गांव में ले जाना चाहते हैं? ये ट्रेडिंग है। तो इसके लिए आपका फाइनेंशियल सपोर्ट और फाइनेंशियल पावर जो आपकी, वो बहुत अहम रोल अदा करती है। तो इस तरीके के बिजनेस में आने के लिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका फाइनेंशियल सपोर्ट कैसा है। क्या आपके पास फॉल बैक होने के लिए है कि आपने एक जगह पैसा लगाया, मार्केट में पैसा फंस गया? ट्रेडिंग में मार्केट में पैसा फंसता है,
जो लोग ट्रेडिंग में हैं और ट्रेडिंग के बिजनेस को जानते हैं, उनका बहुत सारा पैसा, मोर देन देयर इन्वेस्टमेंट, जो वो मार्केट में फंसा रहता है। तो क्या उसको सस्टेन करने के लिए आपको इतनी शॉक ऑब्जर्विंग पावर है, ये आपको सबसे पहले देखना है। आपने देख लिया, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें फिर आपका एक मार्केटिंग और सेल्स नेटवर्क आपको बनाना पड़ेगा। मैं इससे पहले थोड़ी सी और स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूं कि जब मैंने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप की बात की थी, आजकल जो जितने भी बिजनेस एंटरप्राइज हैं, वो एक तो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में मैंने 5-6 बातें आपको गिनाई, लेकिन आजकल जो ट्रेंड बदल गया, एक आदमी मैन्युफैक्चरिंग में है तो वो केवल मैन्युफैक्चरिंग में रहता है। ट्रेडमैन और ट्रेडिंग पीपल, दे टेक द प्रोडक्ट। आजकल सबका जॉब डिस्ट्रीब्यूशन है, बिजनेस का भी बहुत सेक्टर वाइज बिजनेस हो गया है। तो ट्रेडिंग वाले जो है, जिनकी सेल्स और मार्केटिंग, उनका अपना देखना पड़ेगा कि हाउ स्ट्रांग यू आर इन सेल्स प्रोडक्ट, हाउ बेस्ट यू कैन सेल द प्रोडक्ट्स टू द पीपल जिनके लिए वो बना हुआ है, और उसकी मार्केटिंग आप कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी ध्यान में रखने वाली बात है कि आपके पास स्टॉक रखने की जगह है। फाइनेंस के साथ है कि आपके पास स्टॉक को रखने की जगह है। आपने एक सामान खरीदा, सडनली उसकी कीमत बढ़ गई, और बढ़ी हुई कीमत पे फिर आप उसको, जो हम शॉर्ट टर्म गेन कहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आप ट्रेडिंग में हैं तो आपका अल्टीमेट उद्देश्य यही होगा कि मैं कम से कम इन्वेस्टमेंट करके मैक्सिमम पैसा कैसे कमाऊं विद इन दोज मार्केटिंग फ्रेमवर्क, कॉस्ट फ्रेमवर्क। तो आप स्टॉक करना एक सबसे बड़ी आपको देखनी पड़ेगी कि क्या मेरे ट्रेडिंग काम में मेरे पास स्टॉक करने की जगह है, मेरे पास स्टॉक करने की पावर है, और स्टॉक ट्रेडिंग के बाद क्या मैं उसके ऊपर पूरा अपना जो बिजनेस प्लान है मेरे को, उसको इफेक्टिवली कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। आपने स्टॉक कर दिया, आप मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं, आप सेल्स कर रहे हैं, आपका स्टॉक खत्म हो गया है, आपका स्टॉक खत्म हो गया, आपके फाइनेंस खत्म हो गया है, तो आप फिर कोलैप्स हो जाएंगे, आपका ट्रेडिंग बिजनेस विल कम टू वर्ज ऑफ क्लोजिंग। तो इस तरीके से एक समन्वय बिठाना है, एक कोऑर्डिनेशन बनाना है, एक प्लानिंग करनी है आपको हर एरिया ऑफ एक्टिविटीज के अंदर, ताकि आप सक्सेसफुली स्लोली आप उसको आगे बढ़ा सकें। Just I would like to add one point. I have said the finance. The other point that is innovation. I couldn't speak. Innovative earlier. idea आपको रखना है। Because just let example of manufacturing sector. For manufacturing sector, innovation is also very important. Very important. Very important. From where the resource will come. I mean the raw material and or other things for the product, including even machines. Machines where you will take that should be a good quality machine and that should be cheaper. And second, the raw material. And second, there after the production, the marketing is starts. So again, the marketing, selecting a market for a product, all these 2-3 points you have to study before starting and going to the manufacturing sector. And if you create some new product, raw material, I mean suppose that calcium carbonate is for used for this cement industries, and if you have idea of some other raw material that can also produce cement, a little bit different and a different set of, I mean composition, chemical composition, and cheaper and good for the, I mean durability. So these kind of innovation you can do. That resource may be available to near to the manufacturing unit. It is good because the transportation cost automatically will go down. And all these things, very small things, you can identify and plan. I think that is a very important issue. ये आज के समय में बहुत आवश्यक हो गया है हाँ, कि आपको एक चीज में नहीं रहना है। आप ये देख रहे हैं आपके डे टू डे लाइफ में कि कैसे व्यापार मूव कर रहा है, हर चीज आप रोज नया पा रहे हैं। वही आप इनोवेटिव अगर आप नहीं है, जैसे डॉक्टर प्रदीप ने कहा, इनोवेशन अगर आपके अंदर नहीं है, क्रिएटिविटी आपके अंदर नहीं है, तो फिर आप बिजनेस में कुछ हद तक तो चल पाएंगे, लेकिन जब कंपटीशन, जो हम आगे बात करेंगे आपको कंपटीशन की, बिजनेस कंपटीशन की, ट्रेड की, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड की, तो उसमें हम इसको कवर करेंगे कि इनोवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो या मार्केटिंग में हो या ट्रेडिंग में हो। आज की तारीख में आप देख रहे हैं लोग नए नए मार्केटिंग पॉलिसीज या टैक्टिक्स लोग अपना रहे हैं। वो क्या है? वो एक इनोवेशन है। Actually, डॉक्टर पाल,
आप सही कह रहे हैं कि ultimately entrepreneurship is sustainable because of innovations. Absolutely. Innovations अगर रहेगा तो आपके पास कस्टमर्स रहेंगे, क्लाइंट्स रहेंगे, आप कुछ नया चीज देंगे, क्योंकि मार्केट एज सच इज गेटिंग सैचुरेटेड. बहुत किस्म के लोग हैं. पिक अप एनी प्रोडक्ट, देयर आर पीपल ऑफ different people are giving that same product. But what you are going to give? You are going to give something new to attract the clients or the customers. So, as you were saying, cement. Cement is a product which is used for making buildings, for construction activity. If someone could come up with something innovative, something perhaps more durable, perhaps less expensive, perhaps easier to use product which can be a substitute for cement, well, that will have certainly in due course of time have a lot of demand. Now, when we talk about enterprise in a rural area, it need not be, it has to be devoid of innovation. It need not be the same old product which is there in an urban area, which has to be replicated in a rural area. When we talk about enterprise in a rural area, we mean also that the enterprise has to have the elements of innovation. That is why when we started this session, I was keen that Dr. Best could take up something like rural tourism. Okay. Now, which I think this particular session we may not be having enough time to discuss about rural tourism, but therein there is scope, ample scope for innovations. Now, which is not, I mean, it need not be a sheer imitation of tourism in an urban area. Similarly, there are many other products, even in manufacturing, which could be something where there could be elements of innovation. Now, when you have such elements of innovation integrated within your enterprise, then the chances of that enterprise being a success is fairly large. Now, coming to, I mean, when this is there, then you have to have, the most challenging is selection of a product. Product meaning it could be a manufacturing product, it could be a service product, it could be a product which you are going to trade. You know, that selection. Why do you want to do that product? Why do you want to give time? Why are you selecting that? That has to be a very, very difficult choice. It's a very difficult decision. Now that, you see, there are, as Dr. Best has said, that there are institutions which can provide projects, which can give you ideas, what to do and all that. I would say that's fine. You should collect ideas from wherever, whichever source it's possible. There's no harm in getting ideas, but you are the ultimate, you would be deciding, taking the ultimate choice. You would be making the final decision. So you have to choose which product you are going to produce, or you want to service, or you want to trade. Now this choice of product has to have many things involved in it. It has to have your own personal experience, or the opportunities that you see, or the capabilities that you see in your people,
or the finances that are available for you. You have to take into many considerations before you arrive at a product of your choice. Now, this product of your choice should be such that, it takes time for people to think about this product. It shouldn't be something which is readily available, everyone can replicate. You have to think, so you have to have that kind of period. It should be a product where, people before they imitate, you would make the initial profit. And that would keep you going because you are the pioneer in that line. And if this is seriously thought of, the later part of enterprise falls into its place. Regarding arranging of finance, as Dr. Pradeep was saying, arranging of finance, you could have a little finance of your own. You could arrange it from your friends. You could go to an institution, but institutions would not give you money immediately. Institutions would watch and see, would understand your project. Then only they would come forward with money. So it's for a person in a rural area, it is sensible to start something which is possible within your family's, with the family's support, with support of people who can, who would not be very, very rigid about the financial conditions. So it's better to start a smaller project. Then as you go up, then you can involve more money. Now, it is there only where I would suggest that if people from an urban area could come into a rural area with projects of larger size, who have more resources, who have more experience, who have been working in an enterprise and would find it convenient to set up their unit in a rural area, then they are most welcome. If they could do it, fine. If a rural area youth does not have that capability, we do not mind someone from an urban area to come forward. Because we want rural resources and rural, both men and material, to be used so that there should be a lot of economic activity. Because when economic activity, people are engaged in economic activity, then that shows up in it has ramifications, it has a lot of impact in various ways, and that brings about the overall development of the area. Now, that gives the purchasing power to people, that gives, when the purchasing power is there, then people are able to buy what they want. They can buy food, they can buy clothes, they can go for housing. And when you do all this, then many other economic activity starts. And these further lead to much more purchasing power and overall development of the area. That also starts demanding on social like education, health and all. Those things taken care of. So people tend to live a better life. Now, we would like to come back to you again with the next session on the same topic. Before we end, my request is you have not asked a single question to us. We do not know whether you're following us or not. We would insist that please do ask us some questions, at least to make us happy so that we can keep going. Thank you very much. I would only say that the today's trend, जो दूसरी तरीके के ट्रेडिंग बिजनेस की जो मैं बात कर रहा था, ट्रेडिंग इंटरप्राइज की, उसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आज के समय में आपने देखा होगा सिटी लाइफ, अर्बन लाइफ में एंड रूरल सेटअप में ये जो मॉल आ रहे हैं, क्या है ये मॉल? ये जो मॉल बिजनेस है, पहले छोटे छोटे लोगों ने किया, बड़े लोग मॉल में आ गए बिकॉज दे आर डूइंग ट्रेडिंग. So it's a very good way of, very fine way of getting into enterprise at a very small level, very product specific,
एंड इन अ लार्जर वे इन अ मॉल, जिसको हम आम तौर से देख रहे हैं कि एक छत के नीचे हमें सारा चीज मिल रहा है. सो वी विल टॉक अबाउट इट लेटर एंड देन वी विल ऑल्सो गो फॉर थर्ड सेटअप ऑफ सर्विस सेक्टर जो एंटरप्राइज है उसके बारे में बात करेंगे. थैंक यू फॉर नाउ.